Hello. 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 So, let me introduce the speaker for the day. Yes. Shashi, can I have the honors? कर दूं अब? Am I audible or not? Yes, yes. Audible है ना? Okay. So, good afternoon, everyone. I think after a long break, we are having a session like this. Last week we just had one session on food photography, जो कि अपने नताशा के साथ किए थे. I'm sure सबको अच्छा लगा होगा वो सेशन भी. और Yes. हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप सब खाना बनाएं और उसका फोटोग्राफ्स लेकर सोशल मीडिया पर डालें. टैग हर, टैग अस, एंड आप उसका वर्कशॉप जीत सकते हैं. तो शी विल बी चूजिंग 3 टॉप पिक्चर्स एंड यू विन अ वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप नताशा के साथ. आप कोई भी उसका वर्कशॉप चूज कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है. आपको कोई भी वर्कशॉप उसका जो ऑनलाइन होते रहते हैं, आप उसमें से कोई भी चूज करो एंड शी विल गिव यू फॉर फ्री. We can post more than one recipe. Yes, Tinku, you can. Okay. एंड आज का जो सेशन है वो खाने से बहुत ऊपर है, सपनों की दुनिया में. एंड शशि विल टेक अस टू आवर ओन ड्रीम वर्ल्ड. शशि ने ये सेशन पहले भी किया है, बट दैट वाज ओनली फॉर अ फ्यू लकी मेंबर्स कैफे के, जिन्होंने लीड योर ड्रीम्स अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम किया था. So this one was really awaited by the other members, but शशि जी के बिजी होने के कारण 2 महीने लेट हो गए हम लोगों को. और now we got a time and date जिसमें कि शशि is available and she can take this ahead. It's about creating your own dream vision board. Let me first mute everybody. My favorite work. So Shashi, you can unmute. Yeah, and Bhavika, are you there? Can anyone see Bhavika? Yes. Yeah, he'll just join. Yeah. Okay. So Shashi is an image consultant and she is also a soft skills trainer. ट्रेनिंग में बहुत मास्टर है शशि, एंड वो आज हम सब देखेंगे. एंड प्लस शशि बहुत सारे वर्कशॉप्स कराती है बिसाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग एंड इमेज कंसल्टिंग. शी डज एटिकेट, डाइनिंग टेबल etiquettes. Then she does this dream vision board, which is actually a wonderful session to attend. And over to you Shashi, because we have limited time and ये session थोड़ा सा लंबा चलता है. So welcome Shashi and thank you for your time. Thank you, Kavita, for giving me this opportunity. I'm very delighted to be with you all. I'm part of this organization for quite some time, yeah. And I congratulate Kavita first of all for bringing this initiative and helping people grow, helping women grow, especially entrepreneurs, women entrepreneurs. So it's a great initiative, a great cause, and I am really glad to be here today. Thank you so much. Pleasure is all ours, Shashi. So all set. Should I start? Yes. Am I audible? Yes, Voice absolutely. Okay, so अब मैं आप सबको सपनों की दुनिया में लेके जाने वाली हूँ. So I would want it to be little interactive. बीच में मैं अगर कुछ सवाल पूछूं या we have a discussion kind of thing, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ज्ञान दूं. So please participate. Okay. So first of all, I would want to know कि सपने क्या होते हैं. If you want to write in the chat box एक शब्द आपके लिए dream. What does dream mean to you? सपना क्या होता है? Just one word, if I have to say. So please participate so that desires, aim, kalpana, okay, goal, aim, our own thinking, okay.
focus, happiness, yes, khushi, fulfilling own wish, what we see with open eyes. Okay, I think मुझे सारे आंसर्स ऑलमोस्ट मिल गए हैं. चैट बंद कर दिया सो दैट. ओके, सो लवली, आप सबके जवाब बिल्कुल सही है. सपने वो है जो हम सोते हुए भी देखते हैं और खुली आंखों से भी देखते हैं. और विशफुल थिंकिंग तो है, बट अगर उसको सच बनाना है, इफ वी वांट टू मेक इट अ रियलिटी, देन व्हाट डू वी हैव टू डू. इस बात पे मैं आज थोड़ा सा थ्रो सम लाइट, बिकॉज गोल्स होना, सपने होना इज फाइन, बट सेटिंग दोज गोल्स प्रॉपरली, इफ दैट इज नॉट डन, तो फिर वो सिर्फ विशफुल थिंकिंग रह जाएंगे, सिर्फ डिजायर्स ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर गोल्स, एंड सेकेंडली वी हैव टू सेट द गोल्स. सो मैं गोल्स नहीं लिख के मैं सपने उसको बोलना ज्यादा पसंद करती हूँ. सो आई विल just start my presentation, and so I can share the screen now. Yes, yes, Shashi. So is my screen visible? Yeah. Okay. So I have named it as live your dreams. If you can dream it, you can do it. सबसे पहले कुछ भी करने के लिए सोचना तो पड़ेगा कि हमें वो करना है, हमें वो सपना तो देखना होगा. So everybody is comfortable with Hindi and English, right? I have to. Yes, Shashi. Okay. So what is a dream? आप सबने जवाब दिया था. So it's a series of images, ideas, emotions and sensations occurring involuntarily in the mind during certain stages of sleep, and dreams are also seen in sleep as well as eyes wide open. ठीक है, हम कुछ लोगों ने बोला ना जो हम खुली आंखों से देखते हैं, तो सपने वो हैं जो अनकॉन्शियसली कुछ आइडियाज, कुछ थॉट्स, कुछ इमेजेस हमारे माइंड में चलते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं. और एक है कि वो सपने जिनको हम पूरा करना चाहते हैं और हम खुली आंखों से देखना चाहते हैं. तो एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस. कंटिन्यू टू स्लीप विद ड्रीम्स, या तो आप सोते सोते सपने देखते रहो, और वेक अप एंड चेज योर ड्रीम्स. So every morning you have two choices: continue to sleep with dreams or wake up and chase your dreams. Choice is completely yours. So सबसे पहले we should have a dream. एक सपना होना बहुत जरूरी है. और दूसरा है उसको believe करना. You have to believe in your dreams. You have to own the dream कि ये मेरा सपना है और मैं इसको पूरा कर सकती हूँ. सबसे पहले तो विश्वास, वो बिलीफ अपने अंदर चाहिए. और फिर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है. अगर हम उसको स्पेसिफिकली लिखें, इफ वी राइट डाउन ऑल दोज ड्रीम्स, तो उनके पूरे होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके पूरे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अब ड्रीम्स जो हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, राइट? अभी लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो हमने 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2-3 साल के लिए सोचा हो. ओके, सो दैट इज लॉन्ग टर्म. Then we come to medium term, which is maybe around 1 to 2 years, उसके बीच में. And short term dreams वो होते हैं जो 9 months, 6 months, 3 months, या फिर हम immediately जिनको पूरा करना चाहते हैं within 9 months. तो वो हो गए हमारे short term dreams. Medium हो गए हमारे 1 से 2 साल तक के ड्रीम. 2, 5, 10 साल, ये सब हो गए हमारे long term dreams. And a dream without timelines is just wishful thinking. अगर हम सिर्फ एक कुछ सोच के उस पे कुछ टाइमलाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, कि सेट नहीं करते हैं, कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ एक सोच ही और एक सुंदर सपना ही रह जाएगा. ड्रीम्स आर वेरी पावरफुल. इफ यू पिक अप एनी पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कोई भी इंसान जिसने कुछ बड़ा किया हो, प्राइमरीली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उन्होंने सपना देखा. एक, चाहे आप राइट ब्रदर्स लीजिए, चाहे आप किसी भी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को लीजिए, किसी ने भी जो कोई आविष्कार किया, कुछ नया किया, कुछ बड़ा किया, उन्होंने पहले वो सपना देखा था. सो
dreams are very powerful. If you want to start anything, if you want to do anything in life, if you want to achieve something in life, first of all, you have to dream it. Then only you can do it. So dreams, they give life to our existence. आज अगर हम सपना नहीं देखते हैं तो हम कुछ हमारी जिंदगी में क्या रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है. आप एक मोनोटोनस लाइफ जिएंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, कोई अर्थ नहीं होगा आपके जीने का. So dreams give life to our existence. They give us courage that adds fuel to our effort to achieve amazing success. जैसे कार में पेट्रोल की जरूरत होती है, फ्यूल की, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे हमारी लाइफ को चलाने के लिए ड्रीम्स वो फ्यूल है जो हमें सक्सेस की ओर हमारी गाड़ी को दौड़ाता है, राइट? ड्रीम्स गिव इंडिपेंडेंस टू आवर थॉट्स एंड लाइफ. हमें आजादी देते हैं, हमारे सपने हमें आजादी देते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे सपने हैं, राइट? ड्रीम्स कैन टेक अवे नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम अ माइंड. जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, व्हाट वी लव टू डू, तो फिर हमारे कितने नेगेटिव थॉट्स उस वक्त चले जाते हैं. वी आर सो मच इनटू इट, हम इतने पैशनेट हो जाते हैं उस चीज को करने में कि सारी और नेगेटिव जो थॉट्स होती है वो हमारे माइंड से चली जाती है. The journey of dreams will have some failures, disappointments as well. कोई जरूरी नहीं है जो हम सोचे वो पूरा हो और उसी हद तक पूरा हो जैसा हमने सोचा है. So कुछ failures और disappointments भी हो सकते हैं. तो हमारे सपने हमें वो rejections, वो disappointments और वो failures को handle करना सिखाते हैं. They teach us to handle rejections and disappointments better. And it adds interest to life. You have meaning, direction and purpose. अगर सपने नहीं है तो हमारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है. वो सपना कोई जरूरी नहीं है कि करियर ओरिएंटेड ही हो, कि आज मुझे एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है या आज मुझे एक वर्किंग वुमन ही बनना है. इट इज नॉट दैट. एक छोटी सी ख्वाहिश, अपने मेरी बेटी की शादी मुझे बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से करनी है, बहुत लैविश वे से करनी है, एक ही बेटी है मेरी, ये भी मेरा एक सपना हो सकता है, राइट? So it doesn't have to be connected with a career और कोई आपको प्रोफेशन से ही रिलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं. ड्रीम्स और गोल्स में क्या फर्क है, क्योंकि मैं इनको ड्रीम्स बोल रही हूँ. तो ड्रीम्स तो हो गए ऐसे, हमने सपने देख लिए, कोई हमारा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, ऐसे हो सकता है, बहुत वियर्ड ड्रीम्स हो सकते हैं, क्रेजी ड्रीम्स हो सकते हैं. लेकिन गोल्स वो है जो ड्रीम्स में जब हम टाइमलाइन सेट कर देते हैं, जब एक टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं, तो वो हमारे गोल्स बन जाते हैं, राइट? अभी तक सबको समझ में आ रहा है? Am I audible? The presentation is clear? Yes, Shashi. Okay. So goals are dreams with timelines. Now dreams कैसे होने चाहिए? Dreams होने चाहिए smarter. पहले हमने पढ़ा था smart, but I have added it and I've made it smarter because आजकल smart होना बहुत जरूरी है लाइफ में, right? So what is the meaning of smarter? Like I'll elaborate it. उसको मैं पूरा expand करूंगी. तो so S means specific. कोई भी सपना अगर हम देखते हैं, अगर वो वेग है, वो एम्बिगुअस है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो फिर वो पूरा होने में भी कोई क्लैरिटी नहीं है. If your dreams are vague, if your goals are vague, then the chances of them being successful, that is also vague. So specific में क्या होता है? There are few questions like who, when, how, where, कि कहाँ, where do I have to accomplish this? When do I have to accomplish my dreams? Who all will be involved? जैसे अगर मेरी एक टीम है, तो उस टीम में कौन कौन होंगे, मेरे सपने को पूरा करने में मेरे साथ कौन जुड़ेंगे? What is my dream? सबसे पहले तो what है, what is my dream. Second है why. किसी भी चीज को करने के लिए एक strong reason होना बहुत जरूरी है. If we don't have a strong reason, if we don't have a strong why, तो फिर किसी भी चीज को करने के लिए वो जो पैशन, जो ड्राइव चाहिए, वो नहीं होगा. अगर मुझे आज भूख ही नहीं है, अब आप पिज्जा लाइए, पास्ता लाइए, द बेस्ट ऑफ द क्विजीन आप मेरे सामने लाइए, बट इफ आई एम नॉट हंग्री, आई विल नॉट लव दैट. मुझे वो खाना पसंद नहीं आएगा. सो इसीलिए वो भूख, वाई, वो हंगर होना बहुत जरूरी है.
So what is your goal? Second is why is that goal important for you? उसके बाद है कि who all will be involved, when do you want it to be accomplished, when, okay, where, ये सारे questions सारे specific होने चाहिए. जैसे कि I will say कि I want to lose weight, ये vague हो गया. I want to lose weight because I want to be fit. This is a very vague dream जिसमें कोई goals नहीं, कुछ नहीं. But if I say I want to lose my weight by 5 kgs by November 15th 2020, does it make more sense? यूनिवर्स को भी क्लियर मैसेज जा रहा है कि मैं वेट लूज करना चाहती हूँ 5 kgs विद इन, आज 15 तारीख है, 2 महीने, ठीक है, वो स्पैन ऑफ टाइम मुझे पता है, एंड कितना मुझे करना है, क्या करना है, सब कुछ एकदम क्लियर है. सो ड्रीम्स और गोल्स हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. मुझे क्या चाहिए, जितना स्पेसिफिक, जितना आप इसको छोटे छोटे एकदम बारीकी से आप उसको एकदम एक्सप्लेन कर सके कि मुझे ये काम इस समय पे इतने टाइम इस तरह से करना है, तो वो उसके चांसेस पूरे होने के ज्यादा होते हैं. सेकंड इज एम. स्मार्टर में एस मैंने बता दिया. एम इज मेजरेबल. मेजरेबल मतलब इन लाइक अमाउंट ऑफ टाइम और द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड. जैसे मैंने बताया 15 नवंबर, सो कितने दिन हुए, या फिर कभी मुझे ऐसे इट मे बी अ परसेंटेज ऑल्सो इन द सेंस कि मेरी कंपनी का ग्रोथ 10% होना चाहिए इन नेक्स्ट 2 months, सो इट इज अ परसेंटेज. या फिर मेरा रेवेन्यू 1 लाख रुपया होना चाहिए इन अ मंथ, सो ये भी मेजरेबल है. सो एनीथिंग विच इज अ होल नंबर और अ परसेंटेज और द अमाउंट ऑफ टाइम और अ स्पेसिफिक डेट, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर सिर्फ आप ऐसे ही सोचते हैं हाँ एक दिन मैं ये करूंगी, तो वो एक दिन तो कभी नहीं आएगा. सो यू हैव टू स्पेसिफाई द डेट और द अमाउंट और द परसेंटेज, सो इट हैज टू बी measurable. Third is A, Shashi, which is one achievable. question. हाँ, One question हाँ, on बोलिए. measurable. So Yeah, suppose many of us have a goal of keeping the family happy. okay. तो उसको कैसे measure कर सकते हैं अपने? See, it's a very वो vague फिर thing goal ना. नहीं हुआ. नहीं, गोल ये भी हो सकता है. दिस इज रिलेशनशिप गोल्स, दिस इज अ फैमिली गोल. गोल हो सकता है, बट कीपिंग हैप्पी ये तो बहुत वेग हो गया ना. तो आपको क्या क्या चीजें करने से वो हैप्पी होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू बी हैप्पी आवरसेल्व्स एंड देन ओनली वी कैन मेक अदर्स हैप्पी, एंड कीपिंग आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट. Keep making others happy at the cost of your self respect, I don't believe in that. So ये थोड़ा सा अलग टॉपिक चला जा रहा है, but I'm sharing because I think it is important. So अगर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को अच्छा खाना पसंद है और मैं उतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, और मेरा गोल है कि आई वांट टू बी अ बेटर कुक टू मेक देम हैप्पी, ठीक है. सो तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरी कुकिंग मुझे इम्प्रूव करनी है. सो कैन आई ज्वाइन अ कोर्स, कैन आई वॉच यूट्यूब वीडियोज, how can I do that? So it has to be specific. और ये मुझे ऐसा भी हो सकता है कि हर एक दिन मुझे एक नई क्विजीन ट्राई करनी है, राइट? मुझे एक नया वीडियो देखना है, एक नया क्विजीन बनाने का, एक नया कोई भी आइटम खाने का बनाने का, एंड आई विल ट्राई दैट क्विजीन, आई ट्राई दैट रेसिपी, ओके. एंड तो 2 महीने में आपने 60 रेसिपीज बना ली, एंड देन ऑफ कोर्स यू इम्प्रूव ऑन दैट. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. वैसे खुशी समझ लीजिए कि अच्छा, टेल मी, if you have to make your family happy, what do you want to do? Specific होना चाहिए. I just want to make, I want to be happy. सिर्फ ऐसे बोलने से बहुत ही वेग हो जाएगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा. सो कोई भी अगर पूछना चाहे एक स्पेसिफिक चीज की ये है, मुझे अपनी फैमिली को खुश करने के लिए ये करना है, सो देन आई कैन गिव एन एग्जांपल. आई होप वो रेसिपी से भी क्लियर हुआ है. या गॉट इट. मतलब कि अपने को थोड़ा स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा, ऐसे वाइड ओपन सोचने से नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है या मैं कुछ बनना चाहती हूँ. दैट इज नॉट अ गोल, राइट. तो कुछ भी हो सकता है. तो यूनिवर्स भी समझता है इसको कुछ करना है. कुछ का क्या मतलब है मेरे लिए, ठीक है. हर एक इंसान का अपना अपना सपना होगा, अपने ड्रीम्स है, अपना पैशन है. कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है. मेरा सपना है, वी कैन टेक सजेशंस,
We can take opinions from people, but nobody can impose dreams on us. मेरे सपने मेरे पर कोई थोप नहीं सकता है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है. होता था पहले, आजकल तो हम पेरेंट्स इतने लीनियंट है एंड वी अंडरस्टैंड कि ऐसा प्रेशराइज करने से कुछ होगा नहीं. सो कोई थोप नहीं सकता. आपके सपने मेरे सपने मेरे अपने हैं, यू नो. सपने ही तो अपने हैं, और क्या है, सपने ही अपने हैं, बस उन्हीं को पूरा करते हुए हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. सो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? और आगे Yes. बाद में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर किसी का स्पेसिफिक होगा तो मे बी आई विल आंसर, तो इट विल बी Absolutely. मोर क्लियर. Yeah. Third is achievable. So I'm giving you example of losing weight only because उसके लिए सब women आजकल बहुत concerned रहती हैं. So if I say कि I want to lose 10 kgs in next 5 days, is it achievable? No. अगर मैंने बहुत drastic कुछ किया, so it will affect my health. It may have some bad consequences which are not good for my health maybe. So achievable ऐसा होना चाहिए जो real हो. It has to be real. Doable हो, कर सको जो काम, वैसा होना चाहिए. So if I say yeah, in next 2 months I want to lose 8 kgs, 4 kgs per month. Of course, it has to be a very rigorous exercise, a strict diet and regimen has to be followed. लेकिन doable है फिर भी. So it has to be real, it has to be doable. ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो चांद पे जाना चाहती हूँ अगले साल. उसके लिए आपने क्या वो पढ़ाई की है? Are you an astronaut? Do you have the resources? So everything has to be real, realistic होना चाहिए. सिर्फ सपने हैं ऐसे ही, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आता था ना हमारे जमाने में जब हम छोटे थे. मेरे जमाने में आता था, आज बहुत सारे आप लोग रिलेट कर पाएंगे. तो वो ऐसे सपने देखता था. मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से नहीं होगा, अचीवेबल होना पड़ेगा. Then it has to be रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट. जैसे कि अभी आप अगर एक टाइपराइटर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो रेलेवेंट ही नहीं है. आज के दुनिया में कोई टाइपराइटर यूज ही नहीं कर रहा है, राइट? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो मैं अगर कोई काम करना चाहती हूँ वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो वैल्यू ऐड करना चाहिए आज के दिन में. अगर वो रेलेवेंट नहीं है, वो आज के दिन में वो चलता नहीं है, तो इट विल नॉट वर्क. R stands for realistic also, relevant also. So these are all, you know, interconnected. आप देखोगे specific, measurable, achievable, relevant, सब interconnected है. They are all interdependent. Okay. So realistic होना चाहिए, relevant होना चाहिए. Then time bound. This is very important. क्योंकि हम जब वो time frame नहीं देते हैं, तो हमें पता ही नहीं है हम किस गोल पे जा रहे हैं, किस टारगेट पे जा रहे हैं और हमारे पास कितना वक्त है. हमें वो ड्राइव नहीं मिलता है. सपोज आई एम बुकिंग अ कैब, एन उबर, ठीक है, और एन ओला. अगर मैं ये सारे स्पेसिफिक मेजर सब आपको इसी में आ जाएगा. अगर मैं कोई डेस्टिनेशन ही नहीं डालूं तो सबसे पहले वो लेके कहाँ जाएगा? कैब नहीं लेके जा सकता. अगर मैं डालू बालीगंज इतना बड़ा एरिया है तो वो मुझे जाके कहाँ छोड़ेगा मुझे नहीं पता. So will I reach my destination? No. So हर चीज स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि I want to reach that destination, और तभी वो हमें उस जगह पे पहुंचाएगा. तो वो डेस्टिनेशन और वो टारगेट और वो गोल वो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सो आई वाज टॉकिंग अबाउट टाइम बाउंड. तो अगर मैं बोलूं कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में आई वांट टू डू 50 ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल, एकदम हाई लेवल, टॉप 10 कंपनीज में आई वांट टू डू 50 सेशंस इन नेक्स्ट 1 ईयर. सो टुडे इज 15 सितंबर. मेरे पास 15 सितंबर 2021 तक कितने दिन हैं? उसमें मुझे उसको फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इन छोटे छोटे पार्ट्स में, इनटू स्मॉल स्मॉल चंक्स. लाइक 360, अगर मुझे 12 महीने में मुझे 50 सेशंस करने हैं, तो पर मंथ मेरे कितने सेशंस होने चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 4. 12 4 48 होता है. 4 और 5 समझ लो, 5, चलो 60 ले लेते हैं टू बी मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए. I want to do 60 sessions in next 12 months. Okay, training sessions with corporates. And अगर मुझे और specific होना है तो I want to do business etiquette sessions, 50 business etiquette sessions in next 12 months
with all the बिग कॉर्पोरेट्स में भी मैं बहुत स्पेसिफिक हो सकती हूँ कि मुझे ENY में करना है, कि मुझे PwC में करना है, कि मुझे, सो आई कैन बी दैट स्पेसिफिक ऑल्सो. तो यूनिवर्स को भी पता चलता है कि हमें क्या चाहिए. अदरवाइज हम भी मांग रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी. अगर हम ही स्पेसिफिक क्लियर नहीं है तो हमें यूनिवर्स देगा ही क्या, राइट? सो नाउ आई विल डिवाइड दो 60 सेशंस इनटू 12 मंथ्स. तो एवरी मंथ मेरे 5 सेशन होने चाहिए. एवरी मंथ 5 सेशन होने के लिए 30 डेज में 5 सेशन, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक में मेरा एक सेशन मिनिमम होना चाहिए. 7 डेज में मेरा एक सेशन होना चाहिए. एक सेशन के लिए मुझे कितनी कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा? मे बी 7, 8 और 10. जैसे 80-20 रेशियो चलता है अपना जनरली इंडस्ट्री में. सो अगर हम 10 को अप्रोच करते हैं तो समझ लो हमें 2 सेशन मिलते हैं. सो एटलीस्ट आई हैव टू टॉक टू 10 कंपनीज. आई हैव टू अप्रोच, आई हैव टू मार्केट माई सेल्फ एंड talk to 10 companies so that they give me one session in a week. तो 10 कंपनीज अगर मुझे अप्रोच करना तो मेरे पास एक लिस्ट होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज है, उनका क्या एड्रेस है, किस इंसान से बात करना है, और मुझे पूरा सेट करना पड़ेगा उसको, और मुझे एक दिन में कितने कॉल्स करने हैं, राइट? अगर मेरी एक हफ्ते में मेरी 10 मीटिंग्स होनी है तो एवरी डे, चलो हम सैटरडे संडे हटा देते हैं, 5 डेज. 5 डेज में 10 मीटिंग्स, मतलब मुझे 2 मीटिंग हर दिन में करना है. आपको समझ में आया? मैंने 12 मंथ से कैसे मैं उसको एक मंथ पे लाई, एक मंथ से मैं उसको एक वीक पे लेके आई, एक वीक से मैं उसको एक दिन पे लेके आई. तो इस तरह हमें जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने. क्योंकि जब हम वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे तो वो बड़ा करने के लिए हमें वो इंस्पिरेशन मिलेगा, दैट मोटिवेशन मिलेगा. अदरवाइज एक बार में मैं सोचूं नहीं मुझे तो 1000 सेशंस करने हैं, अब वो 1000 जब 15 सितंबर 2021 को नहीं हुए तो क्या होगा? मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगा, मुझे लगेगा नहीं यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने तो यूनिवर्स को पूरा ये मैसेज दिया, मैंने सब लिखा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका रियलिस्टिक नहीं था, वो अचीवेबल नहीं था, राइट? इट्स नॉट कि नहीं हो सकता. मेरा जो, मैं जितना टाइम कमिटमेंट देती हूँ मेरे ट्रेनिंग्स को, because I am looking after my dad's business also, I am doing some other work also, I am looking after family also, तो जितना समय मैं दे सकती हूँ उसमें मुझे पता है मैं 1000 सेशंस कर सकती हूँ, राइट? Am I clear? Yes. So बिगर गोल्स को आपको स्मॉलर चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप उसको अचीव करो और आपको वो मोटिवेशन मिले. सो व्हेन आई कैन डू 2 मीटिंग्स, मैंने 2 कर ली तो मुझे आज सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, यस आई कुड डू इट. सो आई गेट द मोटिवेशन, द एनर्जी, द ड्राइव टू डू 2 मोर मीटिंग्स टुमारो. अगर मैंने एक दिन में सोचा नहीं मैं आया तो 10 मीटिंग करूंगी, शाम को आऊंगी 10 हुई नहीं, तो आई विल बी डिसहार्टेड, आई विल बी डिसअपॉइंटेड, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड. सो मैंने बोला था ड्रीम्स आल्सो हेल्प अस टू handle our rejections and disappointments also. So time bound इस तरह आप उसको कर सकते हैं. Then evaluative, मैंने एक टारगेट सेट किया था, ठीक है, इन मार्च 2020. मैंने जनवरी में इस साल का पूरा टारगेट बनाया. अब मार्च में पैंडेमिक आ गया एंड एवरीथिंग हैज गॉन हेवायर. सारा काम, पूरा इंडस्ट्री डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, लोग अभी इतना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं. मे बी there's so many free sessions going on, तो मुझे लग रहा है अरे पैसे देके कितने लोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे. there's so many webinars going on, so बहुत सारे थॉट्स हैं, ठीक है. तो जनवरी में मैंने जो टारगेट बनाया कि समझ लो मुझे सितंबर तक मुझे 100 ट्रेनिंग सेशंस करने थे. अब मार्च में आके मुझे ये सिचुएशन लगी कि नहीं, अभी जो सिचुएशन है, अभी कोई भी मुझसे ऑफलाइन लाइव सेशंस, मतलब ऑनलाइन तो हो सकता है बट फिजिकल सेशंस अब मेरे नहीं होने हैं, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी, क्योंकि मार्च में मुझे इतना नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा. तो मैंने अपने ड्रीम्स को, गोल्स को फिर से इवैल्यूएट किया, उसको फिर से रिवाइज किया. द नेक्स्ट इज रिवाइज स्मार्टर. मैंने उनको इवैल्यूएट किया कि क्या ये अब रियलिस्टिक है. मुझे समझ में आ गया नहीं शशि ये नहीं होगा, लेट्स बी रियल. सो मैंने उसको फिर से उसको इवैल्यूएट करके उसको रिवाइज किया कि नहीं 100 तो नहीं होंगे, चलो इतने हो सकते हैं.
जून तक आते आते मैंने देखा सिचुएशन और भी खराबी हो रही है, कहीं कुछ मूव नहीं कर रहा है, पैसे मतलब है ही नहीं इंडस्ट्री में कुछ काम ये वो, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं होगा, तो फिर से मैं उसको रिवाइज और इवेलुएट कर सकती हूँ. सो स्मार्टर, S stands for specific, M for measurable, A for achievable, R is realistic or relevant, T is time bound, E is evaluative, R is revisable. Okay? Yeah. तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, Shashi. I hope. So the points that I'll just reiterate all the points that write it down. Write down your goals to clarify and intensify your intentions. सिर्फ अपनी wishes, अपने सपने को दिमाग में ही नहीं रखो, उनको पेपर पेन पे लिखिए. जब हम कुछ लिखते हैं तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी, उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है? And then as I said, break it down. Break down your goals into smaller and manageable steps to overcome overwhelm. ठीक है? नहीं तो हम ऐसे घबरा जाएंगे कि क्या करना है, हम we will be confused कि क्या करना है हमें. So if you break down into smaller chunks, smaller parts, smaller steps, it is easy. Hold yourself accountable. Hold yourself accountable by maintaining focus and discipline throughout the process. अब आज मैंने सोचा कि एवरीडे मैं अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, मुझे खुद के लिए कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ मुझे स्किल डेवलपमेंट अपना करना है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स, कुछ हार्ड स्किल्स, कुछ भी हो सकता है. सो मैं 2 घंटे रोज उसमें दूँ. आज मैंने 2 घंटे किया, कल मैं बाहर चली गई, या कल घर पे कोई आ गया, या कोई पार्टी थी, या कुछ था, और कल मैंने नहीं किया. सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन. फोकस आपका होना चाहिए, और जब आप वो काम कर रहे हो तो बस वही कर रहे हो. देन योर फोन, इंटरनेट, ऑल द डिस्ट्रैक्शंस शुड बी अवे. आप उसको मत टच करो. सो फुल फोकस एंड डिसिप्लिन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू make your dreams a reality. Okay? So an accountable, एक तो खुद को accountable करो, plus I do one thing. मेरे जो कोच है, मेरे जो मेंटोर है, या जो मेरे टीचर है, या जिनको भी मैं सोचती हूँ कि मैं इनको बोलूंगी तो मैं अकाउंटेबल फील करूंगी कि भाई मैंने ये सोचा है, इस टाइम पे मैं ये काम करूंगी. अगर मैं नहीं करती हूँ तो दैट पर्सन कैन आस्क क्वेश्चंस. वो मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं किया, या कहाँ तक हुआ. तो मैं अपने आप को किसी को अकाउंटेबल कर रही हूँ. अब हर किसी को नहीं, जिसको आप एक्चुअली बहुत जो समझते हैं. जैसे कि आज अगर मैं बीमार हूं तो मैं एक डॉक्टर के पास ही जाऊंगी, मैं एक कॉबलर के पास नहीं जाऊंगी, राइट? और अगर मेरे शूज, आज मेरे जूते फट जाते हैं, तो आई विल गो टू अ कॉबलर, एक मोची के पास जाऊंगी. मोची का काम मोची करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा. सो ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया से ऐसे पूछे, नहीं. आपको पता है वो एक इंसान कौन है, जो आपका मेंटोर, आपका कोच है, या फिर आपका गाइड है, जिसके बोलने से आपको फर्क भी पड़ेगा, आप उसकी बात भी सुनते हो. सो दिस अकाउंटेबिलिटी, ये क्या डबल हो जाती है. खुद के लिए तो हमें अकाउंटेबल होना ही चाहिए, लेकिन ये एक होता है ना, आपको डबल, टू स्टेप सिक्योरिटी देता है. ओके? देन रिवॉर्ड योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आज मैंने 10 लोगों से बात की, मेरी 2 मीटिंग्स फिक्स हुई, तो शाम को आई कैन रिवॉर्ड माई सेल्फ विद अ चॉकलेट ऑल्सो. और मेरा कुछ अच्छा सा सीरियल है, या कोई मुझे नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना था, या सम फिल्म, देन मैं वो आधे घंटे का या 1 घंटे का वो ब्रेक, वो मेरे लिए रिवॉर्ड है कि आई डिड माई वर्क, आई अकॉम्प्लिश्ड माई टारगेट, सो आई एम रिवॉर्डिंग माई सेल्फ. इट गिव्स यू द zeal to, मजा आता है आपको आगे बढ़ने के लिए. खुद को भी रिवॉर्ड करना चाहिए, क्यों नहीं? सेल्फ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, जो अंदर से जो मोटिवेशन आता है, उसका कोई मुकाबला नहीं. So rewarding yourself will help reinforce the positive actions you've taken, so you can continue doing it. Then develop systems and habits. Effective systems and habits make it easier for you to accomplish your goals on a regular basis. हमें पता है अगर हम कोई भी काम 21 days तक continuously करते हैं religiously, तो it becomes a habit. And if you do something for 90 days, 3 months तक, then it becomes your lifestyle. So whatever you want to inculcate, जो आप अपने अंदर imbibe करना चाहते हैं, do it religiously for 21 days.
So I'll give you a very बेकार वाला example, but it works कि अगर मुझे सुबह if I have to go to the washroom at 7:30, अब मैं अलार्म लगाऊं नहीं लगाऊं 7:30 मेरी आंख खुल जाती है because I am into the habit of going to the washroom at 7:30. अब मैं अगर संडे भी होता है तो भी मुझे वो मेरी आंख खुल जाती है 7:30 because my body is accustomed to it. My system is accustomed to it. I have become habituated. So ये system जो हम बना लिया है, जो हम बना लेते हैं या जो habit जो हमने बना ली, so it has to be on regular basis so that it becomes your lifestyle. I am moving over to the next. Yeah, how much time? ठीक है, I'm on time only. Types of goals. So we may have different types of goals. जैसे मैंने beginning में बोला था, it is not necessary कि आपका career oriented ही सारा goals हो. And all these goals are interdependent. And अगर वो एक साथ सिंक में नहीं रहेंगे, हम एक साथ नहीं चलेंगे, तो there will not be a balance. So to have a fulfilled life, to have a balance in life, इन सब goals का एक balance होना बहुत जरूरी है. Okay? So there are different types of goals. First is physical goals. That is related to your well-being, your physical fitness, your health. क्योंकि अगर health is wealth, हम सब जानते हैं. If we don't have good health, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. कितने भी बड़े हमारे एस्पिरेशंस हो, अगर हम फिजिकली हम केपेबल नहीं है, मेंटली अगर हम स्वस्थ नहीं है, spiritually अगर हम स्वस्थ नहीं है, so it is not about physical, it is about total health, a holistic approach. So you have to be healthy. So physical goals होने बहुत जरूरी है लाइफ में for your well-being. Okay. Next is career, business or professional goals. So it can be related to your job, to your business. कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी career आप pursue कर रहे हो, so it is important because career, business और professional goals नहीं होंगे तो financial goals भी नहीं होंगे. Okay? Because पैसे तो चाहिए to run a family, to run errands, to run home. घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए. And we all need money to live and sustain. ठीक है. So वो जो बोलते हैं कि भाई पैसे हाथ की धूल है, वो नहीं. बेसिक हमें चाहिए, बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज है, जो रिक्वायरमेंट्स है. So we have to have career, business और professional goals. और जैसे मैंने बोला smarter, उसी तरीके से ये सारे goals भी हमें बनाने हैं. Okay. Next is financial goals. कि you know what kind of car do you want to have? What is the kind of education that I want to give to my children? मुझे अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाना है, मुझे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है. हर चीज के लिए पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको रिसोर्सेस चाहिए. सो financial goals may also be कि किस तरह का घर आपको चाहिए. You want a bungalow, you want a flat. किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपके होने चाहिए which can sustain you till your retirement. है ना, हम रिटायरमेंट तक की प्लानिंग करते हैं. So these are our financial goals. Okay. Then relationship or family goals. Like Kavita said, if someone's goal is कि मुझे परिवार को खुश रखना है, so it is very important. You cannot neglect your family or your relationships because they are going to be with you. They will give you the drive. They will give you that motivation. वो आपको support देंगे ताकि आप बाकी goals भी पूरे कर सकें. Okay. So family के साथ time spend करना, quality time spend करना, वो relationship को और depth में लेके जाना, to make them better, healthier, वो goals भी हो सकते हैं. Then we have self-development goals, which is very important. I feel हर इंसान को एक ना एक चीज, छोटी से छोटी चीज ही हो जाए, हर दिन एक नई चीज सीखनी चाहिए. बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, चाहे जैसे मैं Zoom पे बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करी थी, मेरे सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा सा पुराना वर्जन है. सो एंड देन आई डिड नॉट हैव अ ग्रीन स्क्रीन. तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे ग्रीन स्क्रीन खरीदना है अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है. तो Zoom में कैसे बैकग्राउंड चेंज करना है वो भी मुझे सीखना था. तो ये भी बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये भी एक गोल हो सकता है. ये मेरा सेल्फ डेवलपमेंट गोल है कि हमें पहले आता नहीं था Zoom यूज करना, हमें Google मीट करना नहीं आता था, हमें बहुत सारे मुझे पीपीटी बनाने नहीं आते थे, तो सब कुछ सीखा धीरे धीरे. सो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज द डे वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप लिविंग.
हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम जीना मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि एक फ्रूट है, जब तक वो ग्रीन होता है, जब तक वो ग्रोइंग होता है, वो पेड़ पे रहता है। जैसे वो राइप हो जाता है, पक जाता है, पेड़ से नीचे गिर जाता है। आपने देखा है नेचर हर जगह हमें वो लेसन्स देता है नेचर। सो ग्रीन रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करना बहुत जरूरी है। एवरी डे लर्न अ न्यू स्किल। छोटी सी बात हो, चाहे फोन पे ही कुछ यूज करना हो, चाहे नया ऐप हो, चाहे खाने की एक नई रेसिपी हो, चाहे हेल्थ के बारे में आपने एक आर्टिकल पढ़ा, रीडिंग अ बुक, एनीथिंग विच हेल्प्स यू ग्रो, यू शुड हैव दोज गोल्स। क्योंकि अपना ग्रोथ एवरी डे थोड़ा बहुत ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे अगर 1% होता है तो 365% हो जाएगा एक साल में, राइट? देन स्पिरिचुअल गोल्स, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फेथ होना, अपने अपना एटीट्यूड, ये सब स्पिरिचुअल। जो लोग स्पिरिचुअली हाई होते हैं, मतलब सक्सेसफुल होते हैं, अपने आप को बैलेंस रखते हैं, वो लोग बाकी फील्ड्स में भी दे सक्सीड, बिकॉज वो फेथ, वो एटीट्यूड और वो माइंडसेट, वो सब बहुत फर्क पड़ता है स्पिरिचुअल गोल्स। सो एंड सम पीपल में बी रिलीजियस, सो रिलीजियस स्पिरिचुअल आप एक साथ उसको जोड़ सकते हो, which gives you peace, which gives you calmness, which gives you stability, balance, that is also important. Then pleasure goals, of course entertainment, pleasure ये बहुत जरूरी है लाइफ में। You know, no all work and no play makes Jack a boring guy. So pleasure goals, entertainment goals, family के साथ, अभी हम बाहर नहीं जा सकते, so what, we can watch a film together, घर में ही पॉपकॉर्न बना लिया, कॉफी बना लिया, सब टैंग ही बना लिया, and we watch a film together, right? So वो भी एक एंटरटेनमेंट हो सकता है। ऑफ कोर्स वेकेशन एंड ऑल अभी इतना नहीं होगा, बट वेकेशन, क्वालिटी टाइम एंड डूइंग एंड इंडल्जिंग योरसेल्फ इन अ हॉबी जो आपको पसंद है, आपकी कोई हॉबी है, लर्निंग एन आर्ट, ओके, लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम मुझे कीबोर्ड पसंद है तो वो भी सीखना, दैट इज ऑल्सो प्लेजर फॉर मी। सो जो भी मुझे खुशी दे, जिस चीज से मुझे खुशी मिले, वॉट एवर गिव्स मी हैप्पीनेस, that can be your pleasure goal. It can be with family, it can be your personal, individual, anything. Then social goals, it is very important because हम एक समाज में रहते हैं, तो हमारे वो भी होते हैं कि हमें समाज के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि कहीं जाना है, कभी फैमिली का कुछ है, वो मन से भी होना चाहिए, बट दोज कैन बी आवर सोशल गोल्स। मोर इम्पोर्टेंटली इट इज दैट वी हैव कम ऑन दिस अर्थ फॉर, वी हैव बीन, आई मीन वी हैव कम फॉर अ पर्पस। यहाँ पे हमारा कोई ना कोई काम है इस धरती पर, इसीलिए भगवान ने हमें भेजा है। आई बिलीव इन दैट, ओके। सो वो पर्पस क्या है? टू गिव बैक टू द सोसाइटी। फॉर मी वो सबका होना चाहिए कि हम समाज से सब कुछ लेते हैं, हमें क्या देना है। लाइक कविता, वो प्रोफेशनली शी इज डूइंग हर वर्क, शी इज देयर विद इनकैप एडवाइजर्स, ठीक है, शी इज क्वालिफाइड, शी इज एन अमेजिंग पर्सन। लेकिन जो उसने ये कैफे शुरू किया, मूवमेंट टू हेल्प विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इतना सारा टाइम वो दे रही है, इतना सारा एफर्ट, and money is also involved, nothing comes for free. So the time, effort and money, why is she doing this? Because it is her social goal कि मुझे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुझे एनेबल करना है, उनको एम्पावर करना है, लोगों को हेल्प करना है। सो दैट इज हर सोशल गोल। मेरा भी है सोशल गोल कि मुझे ट्रेनिंग्स करके जितना हो सके मैं बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट, कम्युनिकेशन, कैसे इन सब चीजों को, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, इन सबको, मोटिवेशनल मेरे जो सेशंस हैं उनसे मैं किस तरह, ठीक है इट इज माय प्रोफेशन, मुझे वो मेरे फाइनेंशियल गोल से भी रिलेटेड है, बट वो इंटेंट देने का है, टू गिव, ठीक है। सो दैट कैन बी सोशल गोल्स। सो फिजिकल, career goals, financial goals, relationship goals, self development goals, spiritual goals, pleasure goals, social goals, all these goals are, आप देखोगे ये interdependent भी है, so all have to be in sync। आप सबको एक साथ लेके चलो, कोई जरूरी नहीं है सारे ही गोल्स हो, बट 2-3 आपके होंगे, अगर उन सबके साथ आप चाहेंगे बैलेंस करते हुए, तो आई थिंक इट यू विल हैव अ फुलफिल्ड लाइफ।
या कविता. Yeah, Shashi, somebody wants to know about spiritual goals in detail. तो as I said, देखो डिटेल तो फिर अलग ही उसका So होगा, just and I one am or not two into example you spirituality can that give. much, Yeah. but I One or have two faith. example maybe. हाँ, कि क्या जैसे कि goal हो समझ सकते लीजिए कि हैं? मुझे, सॉरी, कि क्या गोल हो सकते हैं स्पिरिचुअल हाँ, में? जैसे कि मेरे बहुत दिन से इच्छा है कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग का मैं एडवांस्ड कोर्स करूं. आई हैव डन द बेसिक कोर्स ट्वाइस एंड आई लव दैट सुदर्शन क्रिया जो होता है, क्योंकि इट इज अबाउट ब्रेथ. इट इज नॉट अबाउट अ रिलीजन कि वो जैनिज्म है कि हिंदुइज्म है कि बुद्धिज्म है, नहीं. इट इज अबाउट ब्रेथ एंड योर बॉडी. ठीक है, इट इज अबाउट योर माइंड, बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग. तो मेरा ये टारगेट है कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स करना है. 15 डेज का जो मौन व्रत वाला होता है, साइलेंस वाला कोर्स, वो मुझे करना है. मुझे विपासना करना है. किसी का हो सकता है सदगुरु का कुछ हो. सो दैट इज माय स्पिरिचुअल गोल. लेकिन अब मुझे कब तक करना, देखो अभी मैंने भी ये बहुत वेग रखा कि मुझे एक दिन करना है. ये मैं सच बोल रही हूँ, कन्फेस कर रही हूँ कि ये मैंने स्पिरिचुअल गोल रखा कि मुझे करना है. लेकिन आज तक मैंने वो टाइम सेट नहीं किया, बिकॉज मे बी आई वॉज नॉट श्योर कि मैं क्या, और मे बी इट वॉज नॉट माई प्रायोरिटी. तो आपकी प्रायोरिटीज भी आपके डिफाइन करती है गोल्स को. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसी हिसाब से आपके गोल्स भी होंगे, राइट. सो अगर मुझे वो कोर्स करना है, मुझे कितने पैसे चाहिएंगे वो करने के लिए. मुझे आज बैंगलोर आश्रम में जाना है, तो मुझे वो सेट करना होगा कि कौन से वो दिन है, 15 दिन जब मैं दे सकती हूँ. तो वो टाइम फ्रेम, वो स्पेसिफिक होना, मुझे कहाँ जाना है, कब करना है, कितने पैसे लगेंगे, ये हो गया मेरा स्पिरिचुअल. सो हो सकता है कि एवरी डे मुझे 1 घंटा स्वाध्याय करना है. बुक्स पढ़ते हैं ना हम, बुक्स, रिलीजियस बुक्स, मुझे वो पढ़ना है. दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल गोल. मुझे एवरी डे 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करना है. आपको कोई मंत्र चैंट करता है, जिस भी आप भगवान में बिलीव करते हैं, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. ओके, सो आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए आप क्या करना चाहते हैं. इट इज अबाउट आत्मा एंड you know it is beyond body. It's quite in depth. So what is your level of spirituality, उस पर डिपेंड करता है. I am not very spiritual, of course, ठीक है, थोड़ा बहुत तो लेके चलना ही पड़ता है. It is required, it is essential. So I don't think उससे ज्यादा मैं कुछ बोल पाऊंगी in this session. आप क्लैरिटी आई जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा? I'm sure, Shashi. हाँ. सो इट इज कि क्या आपको स्पिरिचुअली आपको क्या हैप्पीनेस देगा, वो आपका गोल हो सकता है. अब वो आपको मेडिटेशन से, बुक्स पढ़ने से, गुरु के दर्शन करने से मिलता है, मंदिर जाने से मिलता है. ठीक है, जैसे कि आपको चारों धाम होता है ना हिंदुइज्म में, वो भी हो सकता है. इस्लाम में जैसे होता है कि मक्का मदीना जाना है, तो वो भी एक गोल हो सकता है कि मेरा स्पिरिचुअल, रिलीजियस स्पिरिचुअल जो भी आप बोलो आप, वो हो सकता है आपका स्पिरिचुअल गोल, जो भी आपकी आत्मा को पोषण दे, आपकी आत्मा की पुष्टि करे. स्पिरिट. ओके, एनीथिंग एल्स? No. सो देन अगर हमें इन गोल्स को लिखना है और उनको इन राइटिंग होना चाहिए, तो वो हम क्यों ना इंटरेस्टिंग बनाए, क्यों ना हम इसको ब्यूटीफुल बनाए, क्योंकि हमारे सपने, तो हम उनको क्यों ना बहुत ही प्यारे सुंदर ढंग से एकदम सजा के बनाए. ठीक है. सो विजन बोर्ड जो होता है, वो आप चाहे आप एक चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, जो आप अपना स्टडी टेबल है तो उस पे आप बोर्ड पे लगा सकते हैं, या फिर इफ यू वांट कि नहीं मुझे अपने गोल्स अपने तक ही रखने हैं, वार्डरोब में हम रोज वार्डरोब खोलते हैं कपड़े निकालने के लिए. सो वार्डरोब, जब अलमारी के अंदर का जो हिस्सा है, वहां पे आप चिपकाइए, वेर एवर, मिरर पे चिपकाइए, वेर एवर यू सी इट एवरी डे, रोज आपको वो दिखे, सो दैट इट ड्राइव्स यू, आपको वो मोटिवेशन मिले उसको करने के लिए. एंड यू एनालाइज ऑल्सो कि मैं कहाँ हूँ, मैंने ये सोचा क्या मैंने आज किया, मैं कहाँ हूँ, खुद को इवेल्युएट कर सके, राइट. सो विजन बोर्ड आप बनाइए, चाहे एक कलरफुल चार्ट पेपर पे बनाइए, चाहे आप स्क्रैप बुक में बनाइए, चाहे आप कोई भी डायरी. आई डोंट थिंक डायरी इतनी वो होगी, बट make it very interesting, make it colorful, make it beautiful, and do it with your heart. और सच्चे मन से ऑनेस्टली करना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है ये विजन बोर्ड. ये विजन बोर्ड मेरे खुद के लिए, मेरा ड्रीम बोर्ड है, मेरे सपने, उनको
को मुझे संजोना है, मुझे वो सजाना है, राइट? सो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स हुआ, हाउस, कार हुआ, गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हुआ, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, स्पाउस के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो ये सारे रिलेशनशिप गोल्स हुए आपके। सो गुड लाइफ फॉर पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स का बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है, उनको सही अगर मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट होना है वो प्रॉपर दूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। सो ऑल दैट इज देयर। रिस्पेक्ट करना, उनको प्यार करना, everything is there. Vacation is your pleasure goals. Then wedding of children, that is also your relationship goals. And jewelry, it can be pleasure goal, it can be, you know, आप status भी maintain करने के लिए होता है, so that is there. Retirement, again financial goal. Business और job हो गया आपका career goals, professional goals. Then lifestyle is there. फैमिली से रिलेटेड गोल्स, हेल्थ से रिलेटेड गोल्स और वेल्थ। सो ये कुछ भी हो सकता है आपके विजन बोर्ड में। आपके प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, आपको क्या टारगेट है, आपके क्या गोल्स हैं प्रोफेशनली, आपके करियर में, वो हो सकते हैं। फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ रख दिए। यू कैन हैव अ लुक फॉर, एंड इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप वो भी ले लो, so that when you make the vision board you have clarity. शशि, So our vision will become, हाँ वापस जाऊं? नहीं, जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग कि सपोज क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर हाउ टू मेक द विजन बोर्ड? हाँ तो अभी नेक्स्ट वही देख लो आप। ओके, इसी में मैं बोलना चाह रही थी कि our vision, your vision will become clear only when you can look into your own heart. आपको अपने अंदर झांकना होगा, कोई और आपको वो गोल्स या टारगेट्स, वो ड्रीम्स वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है? वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको ओपिनियन दे सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए होता है करियर काउंसलिंग एंड ऑल दैट, टू अंडरस्टैंड कि उनका किसमें एप्टीट्यूड है, तो वो भी देखिए प्रोफेशनल गोल्स पे जाएगा। लेकिन आज मेरी फैमिली को खुश करने के लिए क्या चाहिए, तो मुझे दिल से अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अपने आप बैठना होगा। सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। ऑल आंसर्स आर विद इन आवरसेल्व्स। हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा टटोलना होगा और ऑनेस्टी के साथ करना होगा। सो आई ऑलवेज टेल ऑल द अटेंडीज जो भी मेरा सेशन अटेंड करते हैं कि एवरी डे एटलीस्ट 10 मिनट्स, रात को जब आप अकेले हो या फिर कोई भी टाइम आपको जब मिलता है, जब आपका दिमाग खाली हो और आप सिर्फ उसी के बारे में सोच सके, तो इंट्रोस्पेक्शन करो। आज मैंने दिन भर क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या बेटर हो सकता था, राइट? तो ये रिलेशनशिप में समझ लो, आज मेरी डॉटर ने एक तरीके से मुझसे बिहेव किया, आई शाउटेड बैक एट हर। तो रात को मुझे सोते वक्त थोड़ा सा अफसोस होता है कि क्यों मैं चिल्लाई उस पे। मैं उसको प्यार से भी समझा सकती थी, या कोई तरीका हो सकता था क्या? ये एनालिसिस मैं खुद करती हूँ, तो मेरे रिलेशनशिप गोल्स बेटर होते कि अगली बार उसने ऐसा किया तो फिर मैं कैसे समझाऊं। दैट कैन बी अ रिलेशनशिप गोल, राइट? अगर मैंने आज कुछ बिजनेस में कुछ रॉन्ग किया, एक मीटिंग थी जो बैकफायर हो गई किसी से कुछ, या फिर एम्प्लॉइज पे मैंने आज आई शाउटेड एट द एम्प्लॉइज, या मेरी टीम पे मैं चिल्लाई, तो शाम को आके आई एनालाइज कि एज अ लीडर व्हाट वाज दैट थिंग दैट आई कुड चेंज। मेरे से क्या गलती रह गई, या मेरे में क्या वो एक वीकनेस रह गई, नॉट वीकनेस, जो भी एक खामी रह गई या एक कमी रह गई, ठीक है? एक कुछ लैकिंग है जिसके कारण आज मेरा वो लीडर जो मैं हूँ, मेरी टीम के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। Why I could not build a good strengthened team? So I have to introspect. जैसे ही वो होता है, वो मेरा गोल हो सकता है कि मैं कल समझ लो मैं अपने पूरे, वो लोग डिमोटिवेटेड, एकदम डिमोरलाइज है, कोई उनमें एनर्जी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट 1 मंथ, एवरी मंथ मैं एक सेशन रखूंगी, एक मोटिवेशनल सेशन बाय अ कोच, सो दैट इन लोगों को ये मिले, डायरेक्शन मिले, ड्राइव मिले, एंड मैं उन लोगों को थोड़ा सा क्या ओनरशिप दूंगी, या फिर मैं उनको पर्सनली भी उनसे अच्छा बेटर रिलेशनशिप बनाऊंगी कि उसके घर में कुछ हुआ तो आई आस्क कि हाउ आर योर किड्स,
इज आर योर पेरेंट्स ओके, घर पे सब ठीक है ना? सो वो जो जो पर्सनल टच जो होता है, जो ह्यूमन कनेक्ट होता है, शायद वो मिसिंग है मेरी तरफ से। सो जब आप खुद एनालिसिस करोगे ना तो आपके गोल्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। एंड व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, वो तो आपको अपने साथ बैठना होगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, व्हाट इज माय पैशन। आज मैं सच बता रही हूँ कि जैसे कि मैं 2-3 चीजें कर रही हूँ, लेकिन जब मैं ये ट्रेनिंग कर रही हूँ, ये जो मुझे खुशी है अभी अभी मुझे घर का कोई काम याद नहीं आता है, मुझे अपनी कोई बीमारी है तो याद नहीं आती है, कुछ नहीं। एंड आई एम एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट कि मुझे ये करके इतनी खुशी मिल रही है। आज आई डोंट नो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो जितने भी हैं, या आई कैन सी 55। सो अगर सबने अगर एक एक टेक अवे भी वो लोग लेके गए, उन्होंने एक चीज भी पूरे सेशन से सीखी और उन्होंने इम्प्लीमेंट की, तो आई नो आई हैव touched few lives. I have created an impact on someone's lives for better. So ये जो मेरी खुशी है, ये मैं मुझे ही पता चल सकता है। So अगर मैं बाहर देखूं कि अच्छा ये कर रहे हैं, इसमें इसको सक्सेस मिल रहा है, ये इन है, ये चल रहा है, that is all dreams. Who looks outside only dreams. Who looks inside awakes. So एकदम वो क्या बोलते हैं स्लाइड का वो जो पोजिशनिंग था, that was totally in sync with your question, Kavita. Yes. I hope and अगर किसी को अलग से चाहिए तो I can do a one-on-one session because that is my profession. They can sit with me, we can analyze, I can help them understand, introspect किसमें उनका passion है, what can give them happiness, and of course पैसे भी चाहिए if you want to be financially independent. So you know revenue generation भी होना चाहिए. So I can help them make the dream board. So that is completely different. But सबसे पहले तो आपको ही तो 4-5 ऑप्शंस भी मेरे सामने लाने होंगे कि ये चीजें जिससे मुझे खुशी मिलती है, ये मेरी क्वालिटीज है। ये भी होना, आई शुड बी क्वालिफाइड एनफ ना। आज मैं अगर ये ट्रेनिंग कर रही हूँ तो आई हैव डन अ कोर्स, आई एम अ सर्टिफाइड NABIT सर्टिफाइड, स्कॉटिश क्वालिटी अथॉरिटी से सर्टिफाइड हूँ, कौंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से मैं सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ। तो फिर मैंने वो सर्टिफिकेशन लिया है। आज मैं ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी ज्ञान देने जाऊंगी तो कोई नहीं सुनेगा। एंड आई लर्न अ मेथड। आज मैंने पीपीटी बनाया तो एक थॉट डाल के बनाया, एक स्टेप्स है, हर चीज का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैंने सीखा, कैसे डिलीवर करना है वो प्रोसेस सीखा। सो वो स्किल भी मेरे अंदर होना चाहिए, नहीं है तो मुझे वो डेवलप करना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट करो अपनी, अपने आप से पूछो कि किन चीजों से मुझे खुशी मिलती है। अगर उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या क्या रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, क्या, तो स्वॉट एनालिसिस आई वुड सजेस्ट, दैट वुड बी माय आंसर। स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अगर समझ लो 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस है कि मुझे ये कर सकती हूँ या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीनों का स्वॉट एनालिसिस करो कि मेरे क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, मेरे लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है। कि जैसे मैंने जब मैं ये ट्रेनिंग करना चाहती थी, आई वाज इक्वली पैशनेट अबाउट डांसिंग। मुझे लगता था कि आई शुड हैव अ डांस ट्रूप। मैं ऐसा ड्रीम तो था कि मेरा एक इंटरनेशनल ट्रूप हो, मैं हर जगह जाके, बिकॉज डांस गिव्स मी हैप्पीनेस। बट जब मैंने देखा, व्हेन आई वाज डूइंग गोल सेटिंग एट द एज ऑफ 42 या सो आई हैड नी प्रॉब्लम्स। जब मेरी डॉटर हुई तब से मेरे को नी में कुछ प्रॉब्लम्स है। सो आई न्यू मैं 5 साल भी कर ली तो 50 साल के बाद मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद तो डांस नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे और लोगों को लेना होगा जो, एंड आई डिड नॉट वांट टू डू समथिंग जो दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। कल कोई मेरे साथ रहा नहीं रहा, बट ट्रेनिंग इज समथिंग आज मैं यहाँ बैठे बैठे कर रही हूँ, मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है। अगर मुझे घुटने में भी प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं हो रहा है, और मुझे वो इतनी खुशी दे रहा है, मुझे वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। सो मैंने वो स्वॉट एनालिसिस किया बिटवीन डांस एंड ट्रेनिंग्स। सो जब मैंने देखा किसका पड़ला भारी है, कहाँ मेरा लॉन्ग टर्म विजन और कहाँ मेरा जो पर्पस है लाइफ का वो उसके साथ अलाइंड है, तो मैंने सोचा अगर मुझे डांस ही करना है तो ठीक है ना, मैं थोड़ी बहुत डांस भी अपनी ट्रेनिंग्स में डाल लूंगी। अगर मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक सेशन है तो मैं क्या 5 मिनट सबको डांस नहीं करवा सकती, मैं 5 मिनट का मेडिटेशन करा सकती हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट मेडिटेशन आल्सो, आई डू इट माई सेल्फ एवरी डे, आई डू इट माई सेल्फ।
because it gives me that calmness. So SWOT analysis karo, strengths, weakness, opportunity, threat. I hope I answered the question, Kavita. Yes, yes, शशि. एक और क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या अभी की और स्लाइड है? नहीं थैंक यू हाँ, बोल तो दिया ये अभी आप स्लाइड रहने question. दो. Let this slide remain because of you wanted your number also. कौन सा? This one only. हाँ. So लोग बोलते हैं ना शशि, manifestation of your dreams. Yeah. So How? should I stop sharing? हो गया No, मेरा let it presentation. be. Let it be. Okay. People can Okay. click picture for your Okay. contact details maybe. Okay. Yeah. Sorry, बोलिए. Yeah. So manifestation. थोड़ा सा बताइए ना शशि कि how we can, you know, ठीक है, ड्रीम बोर्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया. Now how to manifest it? Okay. So सबसे पहले कि आप उसको प्रेजेंट में करिए कि I am doing it. I will be successful नहीं, I am successful. So whatever manifestation you do it in present as if ये अभी हो रहा है, ठीक है? So like I am healthy, I am happy, I am successful, whatever. कोई भी आप जो चाहते हो जिंदगी में करना, और या जैसे कि मेरा बीच में when my daughter was a teenager, तब you know I had lots of problems with her, बड़ी हो रही थी, सुन नहीं रही थी, बहुत झगड़े. So I used to manifest literally. मैंने जब वो 21 days का magic, जब मैंने वो exercise किया, secret and the magic, so मैंने हमेशा ये लिखा है कि she respects me, she loves me, she cares for me, I have a beautiful relationship with her. ऐसे नहीं कि I will have, it is in present, I'm already having it. तो जिस भी चीज को आप चाहते हो, यू नो बेटर. अगर मुझे आज हेल्थ इश्यूज है, तो सपोज कुछ भी, आज मेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मैं आज मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मुझे थायराइड भी आ गया, ठीक है? तो अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू माय ओन एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट एंड कनेक्ट, ठीक है? सो अभी मेरा ये, मैंने देखा रामदेव जी का कि योगा से थायराइड जा सकता है. So I watched the entire program. Every day I am doing those yoga exercises, ठीक है? And what I am manifesting कि मुझे थायराइड नहीं है. मेरे बाल, मैं जब शैम्पू करती हूँ और इतना हेयर फॉल होता है, आई लिटरली से कि मेरे बाल और स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत सुंदर हैं, एकदम बहुत लंबे हो गए हैं, बहुत घने हो गए हैं. मैं ये करती हूँ लिटरली, आपको फनी लगेगा लेकिन मैं ये करती हूँ. So because of some health issues, ठीक है, I had a lot of hair fall and I was stressed about it. तो मैंने उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस इन प्रेजेंट करना शुरू किया कि मेरा थायराइड ठीक हो गया है. और मैं इतना कॉन्फिडेंस से मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि 2 महीने में जब मैं वापस डॉक्टर के पास जाऊंगी एंड आई विल गेट द ब्लड टेस्ट डन, आई एम कॉन्फिडेंट दैट मेरा थायराइड एकदम नॉर्मल आएगा. सो दैट बिलीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ. और थोड़े दिन आपको ये बेवकूफी लगेगा, कांच के सामने खड़े होके बोलो, 10 एफर्मेशंस करो कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल. जिस चीज में भी आपको लगता है यू नीड टू वर्क ऑन इट, उसी चीज की एफर्मेशंस आप करिए, इन प्रेजेंट करिए, विथ बिलीव करिए और फील करके बोलिए, ऑनेस्टली करिए. कुछ दिन आपको, जब मैंने ना कुछ बच्चों को करवाया, 16 ईयर ओल्ड, 20 ईयर, उनको बहुत फनी लगता है कि मैंने बोला बेटा आप कर लो, आंटी बोल रही है आप कर लो, मैम बोल रही है आप कर लो. 5-6 दिन करोगे ना, अपने आप आंखों में अपने देख के, आंखों में मतलब खुद को देख के, एकदम आंखों में आंखें डाल के मिरर में अपने आप को देख के, फील करके, उस बिलीव के साथ, तो आपको वो आपको सेंसेशंस भी आएंगे. जब करोगे तो चीजें ठीक होगी डेफिनेटली. सो इन प्रेजेंट, बिलीव, फील करके, और जिस चीज पे भी आपको वर्क करना है, उस यू नो बेटर. अभी ये तो बहुत जेनरिक है, इसलिए मैं जेनरिक एग्जांपल्स दे रही हूँ. So I think that should help. छोटी से छोटी चीज भी, मुझे आज दिन भर खुश रहना है, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है, ये भी मैं एफर्मेशंस कर लेती हूँ. इसमें क्या है, जब होता है ना कभी कभी किसी आदमी से आपका होता है कुछ, 36 का आंकड़ा चलते रहता है. So I literally do affirmations कि I have a beautiful relationship with her, I am compatible, हमारे thoughts मिलते हैं, you know, और या फिर I agree to disagree. वो है, मैं उसको एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर.
ये एफर्मेशन मैं रोज करती हूँ, बिकॉज ये बाकी सब चीजों को उसमें क्या बोलता है, सम्मिलित कर लेता है, इट्स क्यूमुलेटिव। मैं जैसे हूँ, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया सबसे पहले, और मैं दूसरों को भी एक्सेप्ट करती हूँ जैसे कि वो है। तब ना वो एक्सपेक्टेशन रहता है, ना वो प्रॉब्लम्स आती है, ना आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। So, Fabulous. चलो, So any I hope- questions from anybody? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो। जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल एंड आई एक्सप्लेन्ड इट। या चलो, वेरी गुड, मेरा सेशन बहुत अच्छा हुआ, किसी के क्वेश्चंस नहीं है। Shashi, can you show a vision board? Do you have it right now? मैंने विजन बोर्ड मेरा रखा, एक्चुअली मेरे घर पे मैंने थोड़े से वो काम चल रहा था, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आया था, तो एक मिनट मेरे पास एक स्क्रैप बुक में था। Okay, Rinku has a question. And Prabhaji wants you to पूछिए say question। something about So, magic एक and छोटा सा secrets. मैंने मेरा वो चार्ट तो मैंने, सॉरी, There are a few questions. आप दिखाओ, फिर उसके बाद लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। So suppose you can see, I think कैसे दिखेगा ये, अरे क्या आ गया, एक मिनट। एक्चुअली ये मेरा कंप्यूटर कल खराब, लैपटॉप एक खराब हो गया, दूसरे में Shashi, ईयरप्लग्स नहीं लग रहा है, तो आज हाँ, you can click a picture and send in the group. तो आई थिंक यू कैन सी इट। नहीं दिख रहा है ठीक है। अच्छे से। हाँ दिख रहा है। हॉलीडे इन गोवा, आई कैन सी इट। यस ठीक है, शायद ये लाइट कम करने से हाँ yes yeah, some phone also, so हाँ, you there's an have pasted pictures. iPhone also, there's a watch also. हाँ, तो पिक्चर पेस्ट किया आपने जो चाहिए उसका। हाँ, ये देखो, you can read it. Yeah. So I'll read it out. So this is a holiday with my best friends. तो हम लोग 40 साल से हम लोग दोस्त हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं। तो we wanted to go to गोवा। एक्चुअली वो बाद में प्लान हुआ, मैंने खुद ही अपने ड्रीम में लिख के रखा था कि मुझे गोवा हॉलिडे करना है 2019 में मेरे बर्थडे पे विथ माय फ्रेंड्स। एंड बिलीव मी, अक्टूबर में तो नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर में हो गया, पर प्लानिंग हो गई, सारे बुकिंग्स अक्टूबर में हो चुकी थी। सो I believe in it a lot. So holiday with Goa, 27th October 2019, 1 week with my bestest friends. और मैंने लिखा है 1 लाख, क्योंकि मेरा आना जाना रहना रिजॉर्ट में जो खर्चा होगा उसके लिए 1 लाख लाविश हॉलिडे करना था, इसलिए। देन आई वांट टू गिफ्ट माय डॉटर ऑन हर 21st बर्थडे अ राडो वॉच वर्थ ₹3 lakhs। तो मैंने डेट लिखा है 22nd April 2021, दैट इज हर बर्थडे। दाम कितना है मैंने जाके क्वेस्ट में चेक किया था, इट वाज अराउंड 3 lakhs, या ऑनलाइन कुछ भी चेक किया। एंड ऑन हर 21st बर्थडे राडो वॉच। ठीक है, अब मैंने वो मॉडल नहीं लिखा, क्योंकि आई नो बाय 2021 और कितने नए मॉडल्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हैं कि कौन सा मॉडल चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। सो आप देख रहे हो, आप मेजरेबल है, ये अचीवेबल है, ये टाइम बाउंड है कि मुझे कितने तारीख को करना है, कितने पैसे लगने हैं, उसका 21st बर्थडे, कौन सी घड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, अगर वो लिखिए और भी स्पेसिफिक होता है। देन iPhone for myself, the latest version on my next birthday, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है goals. पूरा बनाया And then हुआ है। because I travel a lot for work, तो मैंने लिखा है कि I want to learn kickboxing and self defense techniques by 27th October 2020. अब इस साल वो हुआ नहीं क्योंकि ये सब हो गया, but then of course evaluate and revise.
बिकॉज आई वांटेड टू लर्न किक बॉक्सिंग, जो मुझे घर में पॉसिबल नहीं था, कि मुझे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, कि मैं रात को भी कभी ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपना खुद का Yes. सेल्फ डिफेंस कर सकूं. It gives me a lot of confidence. So Shashi, that was about my Shashi, there are a goals. few So I more hope questions. you got some. हाँ पूछ. एक दो क्वेश्चंस हैं. Okay. विमला जी पूछ रहे हैं कि मिरर में बोलकर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. मिरर में आप बोलो, सामने देख के इम्प्लीमेंट कैसे करें, मतलब सिर्फ बोलना है मिरर के सामने सिर्फ देख के. बोलना है. हाँ. हाँ You just have to say every day बस. हाँ, अगर आपको लगे कि आपको दूसरों के सामने एम्बैरेसमेंट हो रहा है, तो जब भी आप अपना दरवाजा बंद करके 5 मिनट्स ही तो लगेगा. 5 मिनट्स क्या, 2-3 मिनट ही लगेंगे. 10 एफर्मेशंस अगर आप एवरी डे करें, छोटे छोटे एफर्मेशंस करिए ना, बट कंसिस्टेंटली उसको करिए. कंसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने बोला ना, वहाँ हैबिट, एक सिस्टम बनाना. 21 डेज तक एक चीज करो आप, तो उनके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. Okay, Chandana has a vision board. Chandana, you can share it. Can you share it right now, or you will share it in the group? And Shashi, do you want them to make their vision boards and share? So they can make their vision boards and post on the group. If you can make a separate group, तो फिर अच्छा होगा. शायद वो सब में नहीं मिलेगा. Or they can send it to you also. ग्रुप में नहीं डाल के आपको भेज देंगे. ठीक है, एक्चुअली ग्रुप में रहेगा तो एक दूसरे से मोटिवेटेड होते हैं ना. हाँ, हाँ. क्रिएटिविटी, यू फील गुड. मैं तो सबको देख के उतना एनालाइज तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, true. So yes, they can put it in the group. एंड आगे इसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल पे आपको कुछ करना है प्रोफेशनली, यू कैन गेट इन टच विद मी. Absolutely. हाँ, कॉल कोई दिखा रहा था क्या? तो आई थिंक लेट देम पोस्ट ऑन द ग्रुप. On the group. बनाओ, इम्प्लीमेंट करो प्लीज. ये एक ज्ञान का सेशन मत रखना कि हाँ सुना, एक पीपीटी देखा, ठीक है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ठीक ठाक लगेगा, किसी को लगेगा बेकार बोला इसने, कोई बात नहीं. लेकिन पूरे 1 घंटे में कम से कम एक चीज तो अच्छी बोली होगी मैंने, जो आपके दिल को छुई होगी, जो आपके लिए रेलेवेंट होगी, जो आपको लगता है हाँ आई नीड टू वर्क ऑन दिस. तो वो एक टेक अवे लेके उसको इम्प्लीमेंट करो, और आज से एवरी डे करो. दैट विल बी लाइक दैट विल गिव मी हैप्पीनेस. मुझे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनेटली एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है एक ट्रेनर को, कि जब कुछ किया किसी ने, उसको यूटिलाइज किया, इम्प्लीमेंट किया, इंटरनलाइज करिए इसको. एक पॉइंट तो कम से कम आपका होगा ही डेफिनेटली कोई टेक अवे. Absolutely. Yeah. So I will now request Bhavika to conclude. Thank you, Shashi. Thank you so much for patiently listening to me. Am I audible? Yes. Thank you. That was really wonderful session, Shashiji. It was amazing. And I totally believe in that affirmation, what you said. Just speaking 3 days, stand in front of mirror, just stand there and speak. 4th day, automatically it will become your habit. And the 10th day, the confidence level will be amazing. So amazing session. You really guided everyone so well. And we all are really thankful to that. And definitely we can make a group and send the 10 affirmation, or they can share their vision board, what will they create. So had a lovely session, such a learning experience, and insightful, very lovely journey. Thank you, Bhavika. Thank you for the kind words. I'm glad that I could add some value. No, definitely. And I think not one, more than one they have taken learning, because you're saying again one. No, it was more than one. You had guided us so well. Thank you. My pleasure completely. Thank you everyone. Hope you enjoyed, and we'll be glad if you share your affirmation, 10 affirmations and a vision board if you can create. Yeah. Thank you. Thank you, Shashi. Thank you, everyone. Thank you, everyone. All the best. और आप सबके सपने पूरे हो, तो ये मेरी मनोकामना है ईश्वर से. स्वस्थ रहें और खुश रहें. Keep smiling and be positive. Yeah, thank you. Wow, Shashi, Amitabh Bachchan style एकदम.
चलो बाय बाय, उनको कोई थैंक मैच यू। नहीं कर सकता हाँ, वो कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती है। चलो बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, बाय 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 बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।